Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is contract of indemnity. Guys, you'll be happy to know that we have started the special contracts. हमने special contracts को शुरू कर लिया है. General contracts up to section 75 of the Indian Contract Act have already been discussed. General contracts में guys हम कुछ general principles को, कुछ general concepts को study करते हैं of the Indian Contract Act 1872. Now we'll be discussing special contracts. Section 76 से लेके section 123 of the Indian Contract Act, these sections guys they have been repealed now because ये sections they have become a part of a separate law which is Sale of Goods Act 1930. पहले Indian Contract Act में हुआ करते थे but now they have been repealed from this Indian Contract Act और अब हम study करेंगे section 75 के बाद directly will be moving on to section 124 of the Indian Contract Act. सेक्शन 75 तक हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा. ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड बाय मी इन ग्रेटर डिटेल. अगर आपने नहीं देखा यू कैन वॉच दैट all those sections. A separate playlist have been made by me. Today we'll be discussing the special contracts, and guys special contracts में we'll be discussing some special concepts. For example, the contract of indemnity, contract of guarantee, contract of bailment, pledge and agency. ये सारे important concepts को हम discuss करेंगे slowly and steadily, and these this series of the special contracts is also going to be very interesting. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. And I promise to provide you with the best content videos here on this platform. I promise कि जो मैं यहाँ पे समझाती हूँ that is definitely going to help you out forever. बहुत properly हर एक concept को I try to analyze. So guys, beginning with the concept of indemnity. सबसे पहले आपको indemnity का meaning पता होना चाहिए. Section 124 and 125 of the Indian Contract Act. These two sections that deal with the concept of indemnity. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 124 in this video because 124, section 124 of the Indian Contract Act 1872 gives us the definition of contract of indemnity. Before I read the bare act language, as always, I'll have brought an illustration for you. हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बेयर एक्ट लैंग्वेज को स्टडी करेंगे. गाइज, इसकी डेफिनेशन अंडर द बेयर एक्ट अंडर द सेक्शन 124 हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स. उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. उन दोनों पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली. गाइज, इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना. इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज इफ आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना. व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस अनदर पर्सन to save him from loss, that is termed as contract of indemnity. First part ये होता है, first part I have told you कि there are two parts, it has been bifurcated. हम first part को अगर study करें तो contract of indemnity होता है when one person promises another person to save this person from loss, that is termed as contract of indemnity. अब guys यहाँ पे I've got an illustration for you. हम देखते कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को प्रॉमिस करता है कि आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा. यानी कि आई विल बी प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लॉस, आई विल बी सेविंग यू अगेंस्ट लॉस. अब वो क्या कॉन्सेप्ट है? रीडिंग दिस इलस्ट्रेशन गाइज, सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल. एक इंसान ये वाला है. इस इंसान ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया. गाइज हमेशा याद रखना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन themselves and they are valid contracts. Provided all the essential elements are fulfilled, they are valid contracts in themselves. So one person A, he has entered into a contract with an insurance company. इसने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने कहा कि I wish to insure my car against accident. ये मेरी कार है, this is my vehicle, this is the conveyance I possess and I wish to मैं इसको इंश्योर करवाना चाहता हूँ अपनी कार को against any kind of accident, against any kind of fire or perils of sea. अब क्या हुआ? दिस पर्सन हैड गॉन टू द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंसान को प्रॉमिस किया. गाइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. हमेशा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ प्रीमियम लेती है एंड फॉर दैट प्रीमियम, इन कंसिडरेशन ऑफ दैट प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज प्रॉमिसेस टू सेव यू अगेंस्ट लॉस. अगर आपको देखा हो, हम ऐसा ही करते हैं कि वी insure our vehicles against accident, and in case those vehicles, insured vehicles, they met with an accident, तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है. अब इंश्योरेंस कंपनी कभी भी फ्री में किसी के लिए काम नहीं करती है. One person has to pay premium to the insurance company. Insurance company then promises in lieu of this premium or in consideration of this premium
इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस यू टू सेव यू फ्रॉम लॉस। इट मीन्स यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। इट मीन्स अ पर्सन जो आपकी इंडेमनिटी आपको देता है। इट मीन्स अ पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी, एनी पर्सन और एनी एंटिटी विच गिव्स, और एनी एसोसिएशन जो इंडेमनिटी देती है उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में गाइज इंश्योरेंस कंपनी इज एन इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर इज समबडी हु गिव्स इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। अब आपको पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इफ इन केस दिस पर्सन कार मीट्स एन एक्सीडेंट और ये कार डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसका खर्चा यानी कि इसकी जो भी इंडेमनिटी है, नुकसान की भरपाई कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी। तभी हम क्या करते हैं, अपनी कार्स को, अपने व्हीकल्स को इंश्योर करवाते हैं, पॉलिसीज लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दिस इंश्योरेंस कंपनी इन ल्यू ऑफ दिस प्रीमियम विच हैज बीन पेड बाय यू दे प्रॉमिस टू सेव यू फ्रॉम लॉस। वो आपको वादा करते हैं कि विल बी प्रॉमिसिंग यू टू सेव यू फ्रॉम लॉस इन फ्यूचर। अगर कोई भी लॉस आपको आता है, इट मीन्स आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो जो ये वादा करता है, जो ये प्रॉमिस करता है गाइज, उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। सो इन दिस इलस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंपनी इज एन इंडेमनीफायर। और जिस इंसान को इंडेमनिटी मिलती है, इट मीन्स अ पर्सन इन हुज प्रोटेक्शन इंडेमनिटी इज गिवन, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यू शुड नो नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी यानी कि जो वादा करता है नुकसान की भरपाई करने का, उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। And the person in whose protection that indemnity is given is called indemnity holder or indemnified. So ये दोनों terms हैं, these are the parties in a contract of indemnity. I hope guys आपको बेसिक क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को प्रॉमिस करता है उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, और in other words one person promises another person to save this person from loss. इफ इन केस अगर इसको कोई भी लॉस होता है तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सामने वाला क्यों करेगा? क्योंकि इन दिस इलस्ट्रेशन हमेशा क्या होता है, इट इज डन इन ल्यू ऑफ समथिंग, कंसिडरेशन होती है, समथिंग इन रिटर्न होता है। तो यहाँ पे दिस पर्सन इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड, दिस पर्सन विल बी पेइंग प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड दिस कंपनी एज एन इंडेमनीफायर प्रॉमिसेस यू टू सेव यू फ्रॉम लॉस। एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉस? लॉस क्या है? जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरी कार को इंश्योर करो, इफ इन केस दिस कार मीट्स एन एक्सीडेंट इन फ्यूचर, कभी फायर से और फॉर एनी रीजन अगर ये डिस्ट्रॉय होती है, तो इंडेमनिटी कौन देगा? नुकसान की भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। आई होप गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका कि इंडेमनिटी का मीनिंग होता क्या है ना गाइज। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय मी विद दिस इलस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आ चुका है इंडेमनिटी का मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। अब गाइज इंडियन लॉ क्या कहता है कि अगर इंडेमनिटी, बेसिकली जो सेकंड पार्ट है इंडेमनिटी की डेफिनेशन का, इट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ इंडेमनिटी। वो इंडेमनिटी के स्कोप की बात करता है। गाइज जो इंडेमनिटी का स्कोप है अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट स्कोप इज वेरी मच लिमिटेड। इट इंक्लूड्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना गाइज। इंडेमनिटी, concept of indemnity under section 124 of the Indian Contract Act, it is quite limited since it includes limited contracts only. Now what is the meaning of limited contracts? It means indemnity सिर्फ तभी मिलेगी, सिर्फ उसी केस में आपको indemnity मिलेगी जहां पे ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व है। अब आप चीज देखो, वो बोल रहे हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अनदर पर्सन फ्रॉम लॉस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन पर्सन promises to save another person from loss caused to him by conduct of promiser himself. अब यहाँ पे आप देखो that loss has been caused to this particular person either by the conduct of the promiser himself. promiser कौन है यहाँ पे? indemnifier, जो promise करता है कि आपके नुकसान की मैं भरपाई करूँगा। It means इस इंसान को इंडेमनिटी सिर्फ तब मिलेगी जब इसको कोई भी लॉस हुआ, कोई भी डैमेज हुआ, which is either a consequence of the conduct of promiser himself और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन का मतलब है सम थर्ड पर्सन, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी पर्सन है। इट मीन्स गाइज आप यहाँ पे ये देखो कि इफ आई टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ इंडेमनिटी अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज क्वाइट लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है। इफ वी कंपेयर दिस इंडियन लॉ विद इंग्लिश लॉ, तो हमारा इंडियन लॉ में बहुत ज्यादा लिमिटेड है स्कोप ऑफ इंडेमनिटी। अब इसमें कहते हैं कि स्कोप ऑफ इंडेमनिटी इज क्वाइट लिमिटेड। इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट्स
वही कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी मिलेगी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा जहां पे ह्यूमन एजेंसी इज इन्वॉल्व. इट मीन्स इंडेमनिटी फॉर लॉस or for damage will be granted only in cases where human agency is involved, human conduct is involved. Human conduct में कौन आता है? Either promisor himself or by the conduct of any other person. I hope आपको समझ आया. It means इसकी जो exceptions हैं वो हम discuss करेंगे. It means इसके scope में क्या नहीं आता? Something which is not within the scope or within the ambit of section 124 is the contract of इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. अब गाइज आप बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे, आई नो, बट आई विल बी मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर टू यू. मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सेक्शन 124 को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, वो मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन के साथ समझाया. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस is the best example of contract of indemnity. But a point to be noted is that guys कि जो contract of insurance होता है being the best example of indemnity. Indemnity मतलब नुकसान की भरपाई करना, और insurance company से better आपको कोई illustration से समझ नहीं आएगा. But guys एक point important ये है कि जो contract of indemnity होता है, यानी कि जो contract of insurance होता है, ये contract of indemnity तो होता है, लेकिन इसको हम 124 सेक्शन 124 के परव्यू के विद इन नहीं स्टडी करते. इनको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर करते हैं. अब गाइस मैं आपको समझाती हूँ. इसका स्कोप मैंने बताया कि बहुत लिमिटेड है. स्कोप लिमिटेड है वो हमें समझ आ चुका है. इट मींस लिमिटेड इन द सेंस कि इट इंक्लूड्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली. लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे ह्यूमन एजेंसी इज इन्वॉल्व. अगर ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व है, promisor himself is involved or any other person is involved, it means जहाँ पे human conduct involved है और उस human के conduct के कारण आपको कोई भी loss या damage हुआ, तब वहाँ पे contract of indemnity applicable है. It means इसके scope में क्या नहीं आता, तो हम इसके exceptions को study करेंगे. Exceptions का मतलब है something which is beyond the scope or purview of section 124, जो इसकी definition में cover नहीं होता. Exceptions to section 124 हम study करेंगे. Scope क्या है? Limited है, but जो इसके scope के बाहर है उसको हमें study करना होगा as exceptions, तभी आपको इसका scope समझ आएगा. So guys, beginning with the contract of agency and contract of insurance, ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्टडी करेंगे. गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है? बिगिनिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके की इलस्ट्रेशन स्टडी करते हैं. अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप देखो तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 31 to section 36 of the Indian Contract Act 1872 deals with the concept of contingent contracts. Contingent contracts क्या थे? Conditional contracts होते हैं. Contingent contracts are conditional contracts. It means अगर एक condition पूरी होगी तभी वो contract होगा. For example, A says to B that I'll be giving you 100 rupees when your house is burnt. अब जिस दिन बी के घर को आग लगेगी उस दिन ए बी को 100 रुपीज देगा, और जब तक उसका घर सही सलामत है तब तक ए का पैसा ए के पास ही रहेगा. इट मीन्स यहाँ पे एक मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक हमारा सब्सिडरी और कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है. सिमिलरली गाइज इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करने को तैयार है. इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड कि मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा, बट कब तक करूंगा, कब तक नहीं करूंगा? जब तक आपकी कार को आग नहीं लगती. इट मीन्स गाइस कि जिस दिन इस इंसान की कार को आग लगी, हिज कार मीट्स एन एक्सीडेंट और इज डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्ट ऑफ फायर, तो उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रॉमिस पूरा करना है. आई होप यू आर एबल टू रिलेट कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर करते हैं. सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे डील विद वेरियस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और वहां पे हमने देखा था कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स. एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको अभी भी समझा चुकी हूं, और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इज ऑब्लिग्ड, दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करें, वो इस इंसान के नुकसान की भरपाई करें, पर नुकसान की भरपाई वो तब करेंगे जब कोई नुकसान होगा. इट मीन्स ये जो इनका ऑब्लिगेशन है सामने वाले को, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है टू सेव द अदर पर्सन फ्रॉम लॉस, वो ऑब्लिगेशन तभी पूरी होगी जब एक कंडीशन फुलफिल होगी. और वो कंडीशन क्या है कि जब तक इसकी कार को आग नहीं लगती या इसकी कार डिस्ट्रॉय नहीं होती, तब तक दिस इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन. आई होप, क्योंकि इसका पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट. आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसीलिए गाइस कहा जाता है
कि ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को समझने के लिए कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को प्रॉमिस करता है उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बट सिंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसीलिए ये सेक्शन 124 के पर्व्यू के विद इन नहीं आता। आई होप आपको समझ आ चुका है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। Contract of insurance is an example of contract of indemnity, yes for sure, but section 124 के purview के विद नहीं आता, क्योंकि section 124 की जो डेफिनेशन है उसका स्कोप बहुत नैरो है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि जहाँ पे ह्यूमन एजेंसी इज इन्वॉल्व, ईदर द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन इज इन्वॉल्व, वहीं पे सिर्फ इसका स्कोप खत्म हो जाता है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को हम इसमें कवर नहीं करेंगे, ऑल्दो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट सिंस इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हम इसको उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124। आई होप आपको समझ आ चुका है गाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है कि देयर इज अ पर्सन एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसके बारे में। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या होता है गाइस, बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान होता है प्रिंसिपल, ही बिकम्स प्रिंसिपल क्योंकि ही हैज ऑथराइज्ड समबडी inferior to him, उसने अथॉरिटी दी है उसको कि तुम मेरे लिए कोई काम करो। It means when one person as a promisee, he does something, he does an act at the request of this person promiser, यानी कि क्या होता है कि when one person, this person agent, यानी कि एजेंट कौन है, प्रोमिसी, when this person agent as a promisee has done something at the request of this person who is promiser or principal in this example, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज डन एन एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ दिस पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इलस्ट्रेशन देती हूँ कि सपोज देयर इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने ए ने बी को कहा, उसके अपने एजेंट को, ए ने प्रिंसिपल ने बी अपने एजेंट को कहा कि मेरे पास कुछ गुड्स पड़ी हैं, आप उन गुड्स को किसी थर्ड पर्सन सी को बेच दो। गाइस जबकि रियलिटी ये थी, अब आपको मैं बताती हूँ, ए ने बी को कहा कि मेरे पास कुछ गुड्स पड़ी हैं, आप इसको टू सम थर्ड पर्सन सी को बेच दो। प्रिंसिपल, दिस पर्सन प्रोमिसर, हैज ऑथराइज्ड, अथॉरिटी दी है इस इंसान को कि आप इन गुड्स को आगे बेच दो। Now since this person as an agent, as a promisee has done something at the desire of this person, promiser ने कहा इसीलिए इसने काम किया, and he had done that in good faith, इसको नहीं पता था कि बात पीछे की बात रियलिटी स्टोरी क्या है। इस इंसान ने क्या किया, एजेंट ने वो गुड्स आके किसी और इंसान को बेच दी। बट नाउ गाइज व्हाट हैपेंड इज कि जो गुड्स एजेंट ने आगे थर्ड पर्सन को सेल करी एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल इन गुड फेथ, वो गुड्स इन रियलिटी उस प्रिंसिपल की नहीं थी, और जो इसका ट्रू ऑनर है उन गुड्स का, उसने क्या किया, एजेंट को क्या किया, स्यू किया। ट्रू ऑनर ऑफ दोज गुड्स, ही स्यूड दिस पर्सन एजेंट, उसने कहा कि आपने क्या किया है, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन किया है, मेरी गुड्स को किसी और को बेच दिया, सिंस वो मेरी गुड्स थी अब आप मुझे कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे गाइस देखो एजेंट की कोई गलती नहीं है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करेंगे, मैं डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। अब यहाँ पे एजेंट की खुद की कोई गलती नहीं थी। अब व्हाट हैपेंड इज कि एजेंट यहाँ पे क्या है, इज समबडी हु हैड एक्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है इनोसेंटली एक्ट किया था, उसे नहीं पता था कि ये गुड्स नहीं है प्रिंसिपल की, उसने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस पे गुड्स को आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब गाइस आप यहाँ पे देखो कि इस इंसान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, एजेंट का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। आप समझ रहे हो कि प्रिंसिपल करेगा, और ये चीज अगर नहीं भी लिखी, अगर ये एक्सप्रेसली नहीं भी लिखा प्रिंसिपल ने, तब भी इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि प्रिंसिपल को नुकसान की भरपाई करनी है। जो ट्रू ऑनर है, ट्रू ऑनर अपने नुकसान की भरपाई किससे करेगा, एजेंट से करेगा। लेकिन क्योंकि एजेंट हैड एक्टेड इन गुड फेथ, उसकी मिलीभगत नहीं थी, उसे नहीं पता था कि ये गुड्स प्रिंसिपल की नहीं है। अगर उसे पता होता कि इसकी ट्रू ऑनरशिप प्रिंसिपल की नहीं है और उसकी भी कॉन्विंस होती, मिलीभगत होती, और वो किसी और इंसान को बेच देता, तो वहां पे सिनेरियो डिफरेंट था गाइस। लेकिन यहाँ पे दिस पर्सन एजेंट, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ही इज एन इंटरमीडिएटरी, ही इज मेयरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दोज टू पीपल। जिसको बेचा थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक था, एजेंट के थ्रू सामान आगे गया। बट सिंस दिस पर्सन हैड एक्टेड इन गुड फेथ, इसे नहीं पता था कि ये गुड्स प्रिंसिपल की नहीं है, यानी कि डिफेक्टिव टाइटल है, उसको इस बारे नहीं नॉलेज थी। सिंस दिस पर्सन एजेंट हैज एक्टेड इन गुड फेथ, इट मींस इनोसेंटली इसने एक्ट किया है, तो क्या होगा यहाँ पे
ट्रू ऑनर इससे नुकसान की भरपाई करेगा और एजेंट नुकसान की भरपाई किससे करेगा, प्रिंसिपल से। अब गाइज यहाँ पे प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता कि मैं आपको नहीं दूंगा, सिंस हमारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्योंकि गाइज अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होता है। अब गाइज अब आप देखो कि यहाँ पे है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आप सोचोगे कि क्यों यहाँ पे हम इसको सेक्शन 124 में स्टडी नहीं करते, क्योंकि गाइज वी हैव अ सेपरेट सेक्शन ऑफ 223। सेक्शन 223 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेपरेटली बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। जो हम एजेंसी डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में सेपरेटली सेक्शन 223 है विच टॉक्स अबाउट concept of indemnity which is to be granted to this person agent in case he has done something, he has done an act at the request of the promisor, at the request of the principal, और अगर इसको नुकसान होता है तो he can claim compensation. It means वो indemnity ले सकता है, इस इंसान के नुकसान की भरपाई प्रिंसिपल करेगा। I hope guys आपको ओवरव्यू समझ आ चुका है कि हमने क्या डिस्कस किया। बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि सेक्शन 124 जो है उसका बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेसिफिकली उसकी टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इसके स्कोप को नैरो कर देती हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो इतना ही है कि इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। एक इंसान दूसरे के one person promises to indemnify another person. One person promises to indemnify another person in lieu of some consideration. क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि कोई क्यों करेगा ऐसा। इट इज इन ल्यू ऑफ सम कंसिडरेशन, कुछ इन रिटर्न होता है। अब आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ चुका है कि इंडेमनिटी का मतलब नुकसान की भरपाई करना। एक इंसान दूसरे इंसान से प्रॉमिस करता है कि आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, दैट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब आपको समझ आ चुका है, बेसिक मीनिंग। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, इट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ इंडेमनिटी। कहते हैं कि इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट का स्कोप सेक्शन 124 में बहुत लिमिटेड है। वो क्यों? बिकॉज इट ओनली कवर्स दोज केसेस, सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ पे लॉस हुआ, जहाँ पे डैमेज हुआ, कोई कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, वही लॉस, उसी डैमेज और उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को हम इसमें इंक्लूड करेंगे विच आर अ रिजल्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी ओनली। इट मीन्स ह्यूमन एजेंसी ओनली का मतलब क्या है? ईदर द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और by the conduct of some third person, any other person. It means अब इसके स्कोप में क्या नहीं आता, सिर्फ यही दो चीजें आती हैं। It means इसके स्कोप में क्या नहीं आता, something which is not within, और आप कह लो कि something which is beyond the scope of section 124, something which can be termed as an exception to section 124 और which is beyond the definition of section 124। तो वो क्या चीजें हैं? वो हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की ही एग्जाम्पल होती है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट सिंस हमारे पास कुछ सेपरेट प्रोविजंस ऑलरेडी पड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसीलिए हम सेक्शन 124 में इसको इंक्लूड नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कैसे है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो वहाँ पे उसको हम सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 के प्रोविजंस से रिलेट करते हैं, ऑल्दो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मोर प्रिसाइजली आपको डेफिनेटली विद डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन समझ आएगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को डिस्कस करेंगे अंडर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन गाइज यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है वहाँ पे एजेंट की गलती नहीं होती। प्रिंसिपल के कहने पे इस इंसान ने कुछ किया, प्रिंसिपल प्रॉमिसर होता है, एजेंट जो होता है वो प्रॉमिस ही होता है। प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट ने इन गुड फेथ इनोसेंटली कुछ कर दिया, लेकिन क्या किया, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी की गुड्स को आगे बेच दिया, जबकि वो गुड्स का ट्रू ऑनर कोई और है। तो ट्रू ऑनर को जब ये बात पता लगती है, उसने क्या किया, एजेंट को स्यू किया। एजेंट को उसको कॉम्पेंसेट करना होगा डेफिनेटली, बट इस इंसान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। और प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता क्योंकि इट कैन बी टर्म्ड एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की तरह हमारा कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लिखित रूप पे हमने नहीं लिखा था कि कल को अगर ऐसा होता है तो मैं आपको ऐसे इंडेमनिटी करूंगा। यहाँ पे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन जो मैंने आपको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की एग्जाम्पल दी है, या फिर ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइज, तो यहाँ पे क्या है, दो इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन, एक्सप्रेस फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुई, बट इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। उसके कंडक्ट से समझ आता है कि आपको इंडेमनिटी करनी है, आपको इस इंसान एजेंट के नुकसान की भरपाई करनी है। इट इज एन एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है। और इस सेक्शन को हम क्यों
बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते? अगेन गाइज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेपरेट प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़े हैं। सेक्शन 223 एक्सप्रेसली टॉक्स अबाउट, अगर आप सेक्शन 223 की हेडिंग भी रीड कर लोगे ना बेयर एक्ट से, आपको समझ आ जाएगा दैट सेक्शन टॉक्स अबाउट इंडेमनिटी विच इज टू बी गिवन टू एन एजेंट इन केस अगर उसको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं ऑफ एन एक्ट विच ही हैड डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आई होप आपको समझ आ चुका है कि सेक्शन 223 क्योंकि अलग से है इसीलिए उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते और हम सेक्शन 124 की बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन लेके चलते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ आ चुका है कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, सेकेंड पैराग्राफ क्या बोलता है, व्हाट आर दी वैलिड एक्सेप्शंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड आई हैव टोल्ड यू कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके का होता है, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इम्प्लाइड की एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ इस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एंड यस, वन मोर थिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। गाइज यू जस्ट हैव टू जॉट दिस पॉइंट डाउन समवेयर, कहीं पे लिख लो, क्योंकि यू नो इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वी आर गोइंग टू बिगिन विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और वहां पे भी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन आई विल बी टेलिंग यू कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। सिंस इट इज हिडन तो वो इम्प्लाइड होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी छुपा होता है, इट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। जब हम गारंटी चैप्टर करेंगे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होता है विच इज हिडन एंड दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। वो आपको बाद में समझ आएगा। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होता है, उसकी इलस्ट्रेशंस में आपको दे चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड दिस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी stated as an implied contract of indemnity, जहां पे indemnity hidden होती है, it is inferred basically। और express तो expressed होती ही है, which is expressly written। यहाँ पे contract of insurance में इंश्योरेंस कंपनी expressly कहती है कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे in lieu of this premium which is paid by this person by indemnity holder or indemnified to the indemnifier। I hope guys आपको contract of indemnity समझ आ चुका है। and one more important point ये रहता है कि अगर एक इंसान का नुकसान हुआ और इसका नुकसान होने पे इस इंसान ने, इंडेमनिफायर ने मना कर दिया कि मैं तो आपके नुकसान की भरपाई नहीं करूंगा, then this person can go immediately can go to the court of law and he can ask the court कि आप इस इंसान को कहो कि अपनी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा करें। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता गाइस, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सिंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन केस ऑफ ब्रीच कोर्ट कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। इट मीन्स अगर यहाँ पे इस इंसान का नुकसान होता है और नुकसान होने के बाद, इसकी कार डिस्ट्रॉय होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि हम आपके नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दिस पर्सन कैन इमीडिएटली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन सीक रिलीफ। वो कोर्ट को बोल सकता है कि इस इंसान को कहो दैट ही हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। सो कोर्ट इसको कहेगा कि यू हैव टू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सिंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे एक चीज को अंडरलाइन किया है विच इज फ्रॉम लॉस। अब इसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी विच मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी promises to save another which means the indemnity holder promises to save this person from loss caused to this person। यानी कि from loss लिखा है गाइस, यहाँ पे from any loss नहीं लिखा। अब आपको वही चीज मैं बता रही हूँ कि from loss लिखा है, from any loss नहीं लिखा। अगर आप इंग्लिश लॉ को स्टडी करोगे गाइस, इंग्लिश लॉ में लिखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन चुका है तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर इस इंसान को किसी भी तरीके का लॉस होता है, फ्रॉम एनी लॉस व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके का लॉस होता है तो इस इंसान को इंडेमनिटी मिलेगी। दिस पर्सन इन हुज प्रोटेक्शन इंडेमनिटी इज गिवन, उसको इंडेमनिटी दी जाएगी फ्रॉम एनी लॉस व्हाटसोएवर। लेकिन इंडिया में इसका स्कोप लिमिटेड है, एनी लॉस नहीं है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम लॉस। लॉस मतलब वही लॉस विच इज on account of human conduct, on account of conduct by some human agency। I hope आपको समझ आ रहा है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है कि इस इंसान को कोई भी लॉस हुआ फ्रॉम, ठीक है, यू नो दिस पर्सन हैज सस्टेन्ड सम लॉस बट दैट लॉस मस्ट बी ऑन अकाउंट ऑफ
conduct by the promisor himself or by any other person. It means we are only talking about human agency. इंग्लैंड में या इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कहते हैं कि अगर इस इंसान को, इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी नुकसान होता है फ्रॉम एनी लॉस व्हाटसोएवर, तो इस इंसान को इंडेमनिटी मिलेगी। लेकिन इंडिया में लिखा है कि इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, इट इंक्लूड्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ह्यूमन एजेंसी इज इन्वॉल्व, वहीं पे सिर्फ अगर लॉस होता है तो इस इंसान को नुकसान की भरपाई मिलेगी इस इंसान से। अगर इट मीन्स ह्यूमन एजेंसी ही सिर्फ है, तो क्या नहीं है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आई होप गाइस आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेसिक समझ आ चुका है। डिस्पाइट वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई भी डाउट फिर भी आपको बचता है, प्लीज कॉमेंट इट in the comment section below. I'll be trying to answer all your doubts for sure. तो अगर कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट करो, I'll be replying to all your doubts. But this concept is quite easy, quite interesting. एक से दो बार if you study आपको समझ आ जाएगा. So thank you so much guys. In my upcoming video I'll be coming up with section 125 of the Indian Contract Act. उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को खत्म करेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी मूविंग ऑन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को वहां भी स्टडी करेंगे. सो गाइज थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय.